الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم وصدق وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کچھ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے، اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے چلتے پھرتے جنہوں نے آقا کی زیارت کی ہے. سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا اس محسن عالم نے اس عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. واجب الاحترام علماء کرام، میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج یہاں پر قاری حمزہ صاحب کی دعوت پر صرف اس غرض سے آنا مقصود تھا کہ آپ حضرات کی اس محفل میں آ کر اکابر علماء کرام قرہ حضرات کی زیارت کی جائے اور اس محفل میں شرکت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. وقت چونکہ مختصر ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے. اصل بیان تو نماز کے بعد ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، خطیب ذیشان واجد خوشلان حضرت مولانا انیس الرحمان فاروقی صاحب جو تشریف لا چکے ہیں، ان کا ہونے والا ہے. جو حضرات ابھی اس انتظار میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں یا باہر چل پھر رہے ہیں کہ پروگرام شروع ہوگا تو ہم آئیں گے، تو میری ان سے گزارش ہے، پروگرام شروع ہو چکا ہے، آپ یہاں پر آئے. مسجد کے اندر پروگرام ہے، مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کی نیت سے یہ بھی ثواب ہے. ایک ایک لمحہ ہمارا ثواب کا لکھا جائے گا. آپ آئیں پابندی ہو کر مسجد میں آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. میرے دوستو، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں اس معاشرے کا مزاج اور اس معاشرے کی ایک فطرت ہے کہ آدمی، جب بعض لوگ میرے معاشرے میں ایسے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہے، کوئی کتابیں پڑھتا ہے، کوئی ناول پڑھتا ہے، کوئی اخبار پڑھتا ہے، جس کو پڑھنے کا شوق ہے وہ پڑھتا ہے. لیکن ایک مزاج یہ ہے کہ ایک آدمی جس چیز کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو پڑھنے کا تو شوق نہیں، ان کو جو ہے سننے کا شوق ہے. تو اسی وجہ سے بعض لوگ سننے کے عادی ہوتے ہیں. کسی مجلس میں گئے، وہاں پر کوئی سیاسی یا مذہبی کارڈ کھیلا، لوگوں کے تبصرے سنے، اپنے کانوں کو سکون دیا اس سننے کی وجہ سے. لیکن مزاج اور فطرت یہ ہے کہ جس کو بات ایک دفعہ سن لیتا ہے دوبارہ سننے کو دل نہیں کرتا. بلکہ بعض تو لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی مجلس میں دوسرے کی بےزتی کر دیتے ہیں کہ بھائی تجھ سے بار بار میں بات سنتے ہیں، بس بھی کر، ایک مرتبہ کہی دوسری مرتبہ کہی، آپ کو سنا ہمیں. اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. آج کل موبائل کا دور ہے، موبائل دیکھتے ہیں. موبائل کے اندر کوئی ڈرامہ دیکھا، کوئی فلم دیکھی، کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں. جو ایک مرتبہ دیکھ لی جاتی ہے چیز، دوبارہ نئی چیز کا انتظار ہوتا ہے، اس کو بار بار نہیں دیکھا جاتا. انتظار میں رہتے ہیں کہ نیا ڈرامہ کب آتا ہے، اور اسی طریقے سے اور چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، نئی چیز ہمیں دیکھنے کو مل جائے. لیکن میرے دوستو، یاد رکھنا ایک عنوان ایسا ہے کہ اگر پڑھنے والا اس عنوان کو پڑھتا چلا جائے، کہنے والا اس عنوان پہ
कहता चला जाए, देखने वाला उस उन्वान को देखता चला जाए तो थकता नहीं है। वो उन्वान ही ऐसा है, उस उन्वान को जिक्र मुस्तफा कहते हैं। जिक्र मुस्तफा उन्वान ऐसा है कि कहने वाला कहता चला जाता है, थकता नहीं है। पढ़ने वाला पढ़ता चला जाता है, थकता नहीं है। देखने वाला देखता चला जाता है, थकता नहीं है। बल्कि सुनो मेरे दोस्तों, जैसे जैसे जिक्र मुस्तफा बढ़ता चला जाता है, मोमिन का ईमान भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे जिक्र मुस्तफा सजता चला जाता है, वैसे वैसे जिक्र मुस्तफा जिस तरीके से छिड़ता चला जाता है, मोमिन का ईमान बढ़ता चला जाता है। मोमिन का ईमान, अगर आप हजरात को भी जिक्र मुस्तफा सुनकर सुकून आ रहा है, एक दफा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, एक कहने वाला मुझे मेरे पास आया, पूछा उसने, देखा मौलवी साहब आप कहते हैं जब जिक्र मुस्तफा होता है ईमान बढ़ जाता है, तो फिर उसने पूछा जिक्र मुस्तफा कब से है, जिक्र मुस्तफा कब से है? मैंने कहा जब से वजूद मुस्तफा है तब से जिक्र मुस्तफा है। जब से वजूद मुस्तफा तब से जिक्र मुस्तफा। कहने वाले ने कहा, पूछने वाले ने पूछा वजूद मुस्तफा कब से है? मैंने कहा एक मैं बताऊं, एक मौलाना बताएं, एक कारी साहब बताएं कि कहां पर वजूद मुस्तफा कब से है। आओ गरे मुस्तफा पे चलते हैं, गरे मुस्तफा से पूछते हैं, आका से पूछते हैं कि वजूद मुस्तफा कब से है। तो आका का फरमान मुझे नजर आता है। आका फरमाते हैं कि अना नबी तुम नबी जो व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था। जब से वजूद मुस्तफा तब से जिक्र मुस्तफा। कहने वाले ने पूछा कि कोई दिन तो होगा। मैंने कहा जिक्र मुस्तफा तब से, वजूद मुस्तफा तब से जब से कोई दिन भी नहीं था, कोई घड़ी नहीं थी, कोई वक्त नहीं था, जब तो खुदा की जात थी, जब बनने वाली मुस्तफा की जात थी। जिक्र मुस्तफा, अल्लाह फरमाते हैं रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिक्र मुस्तफा कब से है? कोई तो वक्त होगा। जिक्र मुस्तफा क्या है? आओ कायनात का मुताला करते हैं, कायनात को खंगालते हैं, जिक्र मुस्तफा देखते हैं। जब अर्श मुअल्ला पर नजर डालते हैं, कायनात के अंदर न दिन था न रात थी, न कब था न अब था, न जिधर था न उधर था। जब रब की जात थी तो देखते हैं कि अर्श मुअल्ला पर तख्ते जो तख्त था उसके पार पर लिखा हुआ नजर आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उसको देखते हैं तो ये जिक्र मुस्तफा है। फिर आगे चले, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद बना, आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बताऊं तो जिक्र मुस्तफा है। आदम का दुनिया में आना और आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का मांगना वो बतलाऊं तो जिक्र मुस्तफा है। आगे चले, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने बेटे हजरत शीश को नसीहत करना बतलाऊं तो उसमें जिक्र मुस्तफा है। हजरत इदरीस की नबूवत बताऊं, जिक्र मुस्तफा है। आगे चलता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया की दुआ रब्बना वबअसनी रसूला को देखता हूं, जिक्र मुस्तफा है। आगे चले, इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन के अंदर एड़ियों को रगड़ना, चश्मे का जारी होना वो बतलाऊं तो जिक्र मुस्तफा है। अम्मा हाजिरा का जो सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना ये बतलाऊं तो उसमें जिक्र मुस्तफा है। आगे चले, मूसा अलैहिस्सलाम का आरज़ू करना कि मुझे उम्मत मुहम्मदिया में पैदा कर दे, उसको देखना, उसको बतलाऊं तो उसमें जिक्र मुस्तफा। ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत बतलाऊं, उसके अंदर जिक्र मुस्तफा। आगे चलता हूं, अब्दुल मुत्तलिब का, हुजूर के दादा का ऊंटों का मुतालबा करना अबरहा से और अबरहा के लश्कर का तबाह हो जाना बतलाऊं तो उसमें जिक्र मुस्तफा। उससे आगे चलता हूं कि हजरत अब्दुल्ला जब अभी बचपन में थे उनकी कुर्बानी के बदले में 100 ऊंटों की कुर्बानी का देना बतलाऊं, उसके अंदर जिक्र मुस्तफा। जमजम का कुआं खोदा जाना वो बतलाऊं तो उसके अंदर जिक्र मुस्तफा। और आगे चलता हूं, आदम की अगर मैं अब्दुल्ला की जवानी बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा। अब्दुल्ला का मदीना की तरफ सफर करना, यसरब की तरफ सफर करना, रास्ते के अंदर एक राहिबा से मुलाकात होना बतलाऊं, उसमें जिक्र मुस्तफा। आमना के साथ शादी होने में जिक्र मुस्तफा। उसके बाद आगे चलता हूं, अब्दुल्ला दुनिया से चले गए। आमना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके महबूब पैगंबर हजरत आमना के शिकमे मुबारक भी आते हैं, आमना बताती है मैं पत्थरों पे चलती हूं, उन पत्थरों को नरम होता बतलाऊं तो जिक्र मुस्तफा। कुएं से पानी का किनारे पर आ जाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा। आगे चले, हुजूर का मिलाद बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा। हुजूर का दुनिया में आना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा। हुजूर का बचपन बताऊं, जिक्र मुस्तफा। हुजूर का लड़कपन बताऊं, जिक्र मुस्तफा। हुजूर का छोटे छोटे हाथों से पत्थरों को उठाकर काबतुल्लाह की तामीर के अंदर शामिल होना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा। हुजूर का हजर असवद को उसके मकाम पे मुंतकिल करना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा। उससे आगे चलता हूं, हुजूर की जवानी बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा। हुजूर का चचा के साथ सफर तिजारत बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा।
मुस्तफा, रास्ते में बुहैरा राहिल की मुलाकात बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, आगे चले हुजूर के लिए बादलों का साया करना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की जवानी बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, मैं असरा के साथ तिजारत का सफर बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हजरत खुदैजा का सफर पे भेजना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हजरत खुदैजा का पैगाम निकाह भेजना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर का हजरत खदीजा से निकाह का हो जाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, आगे चलता हूं, हुजूर का गारे हिरा के अंदर जाकर रातों को बैठना इबादत करना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर के पास जिब्राइल का आना, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक का बतलाना बतलाऊं, तो जिक्र मुस्तफा, हुजूर का वर्का बिन नौफल के पास हजरत खदीजा का हुजूर को ले जाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, आगे चलता हूं, हुजूर का कुरान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान नबूवत बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हजरत अली का ईमान बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, अबू बकर का ईमान बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, खदीजा का ईमान बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, ज़ैद बिन हारिसा का ईमान बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, आगे चलता हूं, हुजूर का खुलेआम बरादरी को, अपने कबीले को, कुरैश को, हुजूर का ऐलान नबूवत बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, आगे चलता हूं, हुजूर का अपने ईमान के लिए, हुजूर का दीन के लिए पत्थर खाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर का तैब का सफर बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, शेबे अबू तालिब की घाटी के अंदर महसूर हो जाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की बच्चियों का और हुजूर के सहाबा के बच्चों का पत्थरों को खाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, पत्तों को खाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, सहाबा का पेट पे पत्थर बांधना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, आगे चलते हैं, हुजूर का मक्का बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर का मदीना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की तबलीग बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की तालीम बताऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर का जिहाद बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर का बदर ओहद बताऊं, जिक्र मुस्तफा, खंदक और हुनैन बताऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की तलवारें बताऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर के तीर बताऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की सवारियां बताऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की जमात बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, आगे चलता हूं, हुजूर का सफर हिजरत बताऊं, जिक्र मुस्तफा, बारिश और में रहना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, और एड़ी पर हजरत अबू बकर की एड़ी पर शाम का डसना बतलाऊं, और उस डसने वाली जगह पे हुजूर का लाभ लहाना दुआब लगाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, उससे आगे चलता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मुताहरात के साथ निकाह बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की औलाद बताऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की अज़वाज बताऊं, जिक्र मुस्तफा, हुजूर की सारी जिंदगी जिक्र मुस्तफा है, हुजूर की जिंदगी का एक एक लम्हा जिक्र मुस्तफा है, हुजूर का सिद्दीक बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा है, फारूक बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा है, उस्मान बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा है, हैदर करार बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा है, मुआविया की सियासत बताऊं, जिक्र मुस्तफा है, हुजूर के सहाबा का हुजूर के लिए कुर्बान हो जाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा है, हुजूर की याद का हजरत हुसैन का अपने पूरे कबीले के साथ करबला के मैदान में कुर्बान हो जाना बतलाऊं, जिक्र मुस्तफा है, किस तरह कैसे हुजूर के जिक्र को छिड़ता चला जाएगा, जिक्र मुस्तफा छिड़ता चला जाएगा, मोमिन का ईमान बढ़ता चला जाएगा। नारे तकबीर कलमत में नारे तकबीर नारे खिलाफत ताजदार खत्म नबूवत ऐसे नहीं दोनों हाथों को बुलंद करके ताजदार खत्म नबूवत। ये महफिल का उन्वान क्या है? जिक्र मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैंने अर्ज किया कि जिक्र मुस्तफा जैसे जैसे छिड़ता चला जाता है, मोमिन का ईमान बढ़ता चला जाता है। सिर्फ जिक्र नहीं कर सकते, जिक्र मुस्तफा की मजलिस में आने वालों, यहां से कुछ पैगाम और सबक लेकर जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए क्यों थे? हुजूर हमें एक पैगाम देकर गए हैं। वो पैगाम क्या है कि अपनी सारी जिंदगी हुजूर की जिंदगी के मुताबिक गुजारे। हुजूर ने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी है, अगर मेरी और आपकी जिंदगी हुजूर की जिंदगी की तरह होगी तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दीन मोहम्मदी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।